بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی مشکل بنا دی۔ فیسکو کو 500 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا۔ فیصل آباد کے شہری علاقوں میں دورانیہ 5 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد کے غلام محمد آباد کے علاقے میں امین ٹاؤن، مدینہ ٹاؤن، اسلام نگر، علی ہاؤسنگ کالونی، ملت ٹاؤن، حجویری ٹاؤن اور جھنگ روڈ کے بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد کے شہری علاقوں میں دورانیہ 5 گھنٹوں تک پہنچ گیا۔ فیصل آباد کے غلام محمد آباد، امین ٹاؤن، مدینہ ٹاؤن، اسلام نگر، علی ہاؤسنگ کالونی، ملت ٹاؤن، حجویری ٹاؤن اور جھنگ روڈ کے بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ سخت گرمی پڑ رہی ہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ دورانیہ 5 گھنٹے تک محیط ہو گیا ہے۔ شدید گرمی میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ فیسکو کو 500 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے۔ فیصل آباد کے شہری علاقوں میں دورانیہ 5 گھنٹوں پر محیط ہو چکا ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیں گے اویس علی سے۔ اویس بتائے گا، لوڈ شیڈنگ شدید ہوتی جا رہی ہے۔ جی بالکل، صنعتی شہر فیصل آباد میں شدید گرمی کی وجہ سے فیسکو کی ڈیمانڈ میں ریکارڈ اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو سامنے آ رہا ہے۔ اس وقت فیسکو کی ڈیمانڈ 3100 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ سپلائی جو ہے وہ 2600 میگا واٹ ہے۔ 500 میگا واٹ فیسکو کو شارٹ فال کا سامنا ہے۔ فیصل آباد کے شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا جو درانیہ ہے وہ 4 سے 5 گھنٹے تک جو ہے وہ جا پہنچا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید گرمی میں بجلی کی بندی سے مشکلات کا سامنا ہے۔ میں اس وقت فیصل آباد کے پوش علاقے اقبال اسٹیڈیم میں موجود ہوں، یہاں پر بجلی بند ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ بجلی بند ہو رہی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے، کن مشکلات کا سامنا ہے؟ فرسٹ آف آل تو سر میں کہنا چاہوں گا کہ ناؤ اڈیز گورنمنٹ کو لوڈ شیڈنگ بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ایگزامز قریب ہیں، وی آر اسٹوڈنٹس، ہمارے ایگزامز قریب ہیں، گرمی میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ صبح بھی لائٹ بند، رات کو بھی 5 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، فون پہ ٹھیک طرح سے چارج نہیں ہو جاتی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ بجلی کی بندی سے مشکلات کا سامنا ہے، اور جو ہے وہ امتحانات کے بھی دن ہیں، اس سے بھی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے۔ کچھ اور لوگ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ بجلی بند ہو رہی ہے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ سر لائٹ آتی نہیں ہے تو بل بہت زیادہ آ جاتے ہیں، اس وجہ گورنمنٹ کو چاہیے لائٹ چھوڑے، اور بل اگر لائٹ نہیں دینی تو پھر بل بھی نہ دے، بل کم دے۔ جی بالکل، بجلی کی بندش کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی کے بل تو وصول کیے جا رہے ہیں، مگر بجلی کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا جا رہا۔ کچھ اور لوگ موجود ہیں۔ اچھا، آپ ہمیں بتائیے گا کہ بار بار بجلی بند ہو رہی ہے، کن مشکلات کا سامنا ہے؟ ہمیں فرسٹ آف آل 4-5 گھنٹے لائٹ جاتی رہتی ہے۔ جب آتی ہے ہم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ لائٹ آ گئی ہے، تو ہم گھروں سے باہر نکلنے ہم لائٹ بند ہوتی، دوبارہ لائٹ بند ہوتی ہے، ہم اس خوشی میں گھر سے باہر نکلتے ہیں، اس کے بعد باہر بھی بہت زیادہ تپش ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ کچھ ہمارا خیال کریں۔ جی بالکل، گھر میں بجلی نہیں اور باہر جو ہے وہ شدید گرمی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ بجلی بند ہو رہی ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، کیا کہیں گے اس والے سے؟ جی گھروں میں تو بجلی لائٹ وغیرہ بند ہے، یہاں تک کہ کالج یونیورسٹیوں میں بھی بند ہے۔ ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں بھی لائٹ بند ہے، ادھر سے گھر جاتے ہیں تب بھی لائٹ بند ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو تب بھی لائٹ بند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہوئی ہے۔ جی بالکل، مشکلات کا سامنا ہے، اوپر سے گرمی فیصل آباد میں بہت زیادہ ہے، اس وقت ریکارڈ گرمی ہے اویس علی، فیصل آباد شہر میں لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ فیصل آباد کے بعد رخ کریں گے جھنگ کا۔ جھنگ میں سورج کا پارا ہائی ہے اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 8 گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے۔ شہریوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مبشر حسن نقوی۔ مبشر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جھنگ شہر اور گرد و نواح کے تمام تر علاقے شدید گرمی اور حبس کی لپیٹ میں ہیں، اور ایسے میں فیسکو کی جانب سے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں 8 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس سے بلا شبہ شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ کمرشل صارفین کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بجلی بند ہوتی ہے تو اپنے گھروں میں پانی کی بوند بوند کو ترستے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ شہری موجود ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کے علاقے میں کتنے گھنٹے کی لائٹ جاری ہے، کیا پریشانی ہوتی ہے؟ تقریباً بھائی 7-8 گھنٹے بجلی کوئی نہیں دی، بندے جناب والی گرمی دے بہت پریشان ہیں، تے کاروبار لوگوں دے ٹھپ ہوئے پے جی۔ مہربانی کریں جی، کوئی حساب طریقہ کار بنائیں۔ ہر طریقے نال بچے دن نوں سوئے نہیں سکتے جی، ہر قسم دا پریشانی دا سلسلہ ہے۔ انہاں دا حق بنتا جی، یہ ٹائم دسے میں فلانے ٹائم جانی، فلانے ٹائم آنی، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بندہ خراب ہو رہا ہے جی، کوئی کاروبار نہیں کر رہے لوگ۔
बिल्कुल वक्फे वक्फे से बिजली की आंख मचौली का सिलसिला जारी है, जिससे बिलाशुबा शहरी परेशान है। इस वक्त भी जो है वो बिजली जो है वो इस इलाके में मौजूद नहीं है। एक और शहरी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा, आप भी बैठे हैं, गर्मी है, पसीने से बुरा हाल है आपका, क्या कहना चाहेंगे, कितने घंटे लाइट जा रही है? सर हम बहुत परेशान हैं, इसका कोई शेड्यूल हमें नहीं देते। 8-8, 9-9 घंटे लाइट चली जाती है, पानी घरों में नहीं होता, बच्चों के लिए पानी बहुत मुश्किल हो जाती है, और हमारे कारोबार हैं तो वो ठप पड़े हैं, कोई हाल ही नहीं है, बहुत परेशान है जी। इसको कोई शेड्यूल बनाया जाए, कोई हमारे लिए कोई सोचा जाए, हम बहुत परेशान हैं। बिल्कुल शहरी मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं, शहरी परेशान है। उनका ये कहना है कि फेसको की जानिब से बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग जारी है, कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया, कम से कम फेसको की जानिब से शेड्यूल जारी किया जाए। शेड्यूल जारी नहीं किया गया, जबकि झंग में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे से तजावुज कर गया है। मुबशिर हसन नकवी आप आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद और झंग के बाद रुख करेंगे चिन्योट का। चिन्योट की बात करें तो चिन्योट में गर्मी बढ़ते ही फेस्को के ट्रांसफार्मर्स जवाब दे गए हैं, जबकि 12 घंटों बाद भी फेस्को बिजली बहाल नहीं कर सकी है। इसी पर बात कर लेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। फेस्को अफसरान की मुबैना गफलत के बायस आए रोज़ जो ट्रांसफार्मर है उनमें आग लग रही है, और इसी तरह ट्रांसफार्मर धमाकों की वजह से पिछले 14 घंटे से जो मौजा रायचंद है वहाँ की बिजली जो है वो बंद है। रात गए यहाँ पर ट्रांसफार्मर में आग जो है वो भड़क उठी थी, और उसके बाद से अब तक 14 घंटों के बाद भी फेस्को अफसरान बिजली सप्लाई जो है वो बहाल नहीं कर सके हैं। दूसरी तरफ घरों में पानी की बूंद बूंद को जो लोग हैं वो तरस गए हैं, और अभी तक बिजली सप्लाई जो है वो बहाल नहीं की गई है, जिस पर जो सार्फिन है उनका पारा भी जो है वो हाई हो गया, और फेस्को अफसरान के खिलाफ एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह ये लाइट आपकी बंद हुई है, क्या मसला है? जी है रात ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਗ ਦੂਏ ਦਿਨ ਤੀਏ ਦਿਨ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਤੇ ਉਤਾਂ ਤਾਈਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਮਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਗਰੂ ਲਾਓ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਤੇ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵੀਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਚੜੀ, ਉਹ ਉਤਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ है। बिल्कुल जी, तारें जो हैं वो घरों की छतों से गुजर रही हैं, जिस वजह से एक बच्ची जो है वो उसकी भी डेथ हुई है, वो भी बताया जा रहा है। और इसी तरह कल से इनकी लाइट जो है वो बंद है, जिस वजह से जो सार्फिन है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या मुतालबा करेंगे? भाईजान कल 12 बजे तो लैके शाम तक बत्ती बंद रही है। 10 मिनट आई है, 10 मिनट तो बाद फिर बत्ती चली गई। इतने धमाका होया है, तो धमाका बाजार दे विच है ट्रांसफार्मर ते ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਰਾਬਾਤ। ਅਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਕੋਲ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਨੇ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ 50 ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ना कोई बिजली है तो जलालत नु फत्ते सार्फिन जो है वो बिजली बंद है, और सार्फिनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह वो मुतालबा चिन्योट के मोहल्ला रायचंद में 12 घंटे बाद भी फेस्को बिजली बहाल नहीं कर सका है। आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब गैर एलानिया लोड शेडिंग ने ताजरों को भी चकरा कर रख दिया है। घंटा घर के 8 बाजारों में लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर हो रहा है, ताजिर बिरादरी परेशान है। इसी पर बात कर लेंगे फजील अहमद से। जी बिल्कुल, घंटा घर के 8 बाज़ारों में लोड शेडिंग का शदीद मसला है, जिसकी वजह से ताजरों को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी के अंदर जो बिजली है वो बार बार बंद होती है, और ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि कारोबार करना भी मुश्किल हो चुका है। मंटगोमरी बाजार के जनरल सेक्रेटरी मलिक इमरान मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी मलिक साहब, क्या कहते हैं लोड शेडिंग के हवाले से, क्या मुतालबा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे मजलूम छोटे ताजरों की आवाज़ बनता है, हम इनको खराज तहसीन पर पेश करते हैं। जनाब, सबसे पहले कि मिनटपुर बाज़ार में एशिया की सबसे बड़ी सूतर मार्केट आती है, जाके आप विजिट कर लें। तारों का इस तरह कॉर्ड 4 पाई बनी हुई है, और इस तरह बुरा हाल है। और एक थोड़ी सी आवाज़ चलने से लाइट दो दिन लाइट नहीं आती, बिजली नहीं आती। वहाँ पे ट्रांसफार्मर है जो वो बहुत ज़्यादा कम केवी का है, और उसकी वजह से 3-3 दिन, और ये मुझसे यकीन नहीं, आप जिस मर्जी आम शहरी से पूछ रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट का ये हालत 3-3 दिन लाइट ऑफ रहती है। और मैं वहाँ का रिहायशी हूँ, और मिडल बाजार का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ।
मिडगुड़ी बाजार में यही हाल है। कल सुबह से लाइट गई है, कल सारा दिन हमने बगैर लाइट के अपने कारोबार किया और अपने घरों को गए हैं। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि लटकती तारों की वजह से भी ताजरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो वहाँ पर बिजली बंद आज बाजारों के ताजिर परेशान हैं, बिजली की बंदिश से कारोबार मुतासिर हो रहा है। फैसलाबाद से फजील अहमद आप हमें आगाह कर रहे थे। लोड शेडिंग के बाद बुलेटिन में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर इजाफा, नई कीमत 112 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 44 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। फैसलाबाद की ताजिर बिरादरी हालिया कीमतों पर इजाफे पर नाला है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे शराज भट्ट से। शराज बताएगा क्या कहना है ताजिर बिरादरी का। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद ताजरों की जानिब से क्या मौक़िफ़ है। फैसलाबाद के ताजिर, जो कि फैसलाबाद ताजरों का शहर है, उनसे जानते हैं कि क्या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हकीकी तौर पर ऑन ग्राउंड महंगाई असल में बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, या सिर्फ ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से जो कारोबारी हजरात है उसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी चीज़ों की कीमतें जो बढ़ा देते हैं। इस हकीकत को जानने के लिए हम लोग मौजूद हैं। अयूब असलम मंच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नायब सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनके साथ साथ राना सिकंदर आजम साहब भी मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे बात करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। सिकंदर साहब, ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का बहाना लगा के चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं या वाकई में कीमतें ऊपर जाती हैं? नहीं भट्ट साहब, ऐसे नहीं है। देखें, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उसको पर किलोमीटर जो ट्रांसपोर्टर है वो उसको कैलकुलेट करता है, तो उस कैलकुलेशन की वजह से लामहला जब आपका फ्रेट बढ़ता है, किराया बढ़ता है, तो वो चीज़ों पे ही पास ऑन होता है जो वो लेके आ रहे होते हैं। अब खेत से मंडियों तक, पोर्ट से अपना शहरों तक, ये जो सप्लाई चेन है उसका ज़रिया तो है आपकी ट्रांसपोर्ट, तो उससे जब किराए बढ़ेंगे तो हर सूरत बढ़ेगा। हाँ, एक फिनोमिना और एक माइंड सेट हमारा बन चुका है कि अगर एक्चुअल उसका इम्पैक्ट जो है वो 2% बनता है तो 2% हर बंदा बढ़ाता जाता है। ये 6 जगहों पे जाके ये 2% 12% बन जाता है। महंगाई होती क्यों है? 2% पेट्रोल बढ़ा या 5%, उसको आगे मैंने मिला के 5% कर दिया, 10। ये वो चीज़ें हैं जिसको 6 जगहों पे जो लेयर्स हैं वो 2% बढ़ा के इसको 12% कर देते हैं। मान साहब, इसमें ये बताइएगा, जब कीमतें कम होती हैं तो फिर महंगाई कम क्यों नहीं होती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हमारी गल्ला मंडी में जब पेट्रोल कम होता है या बिजली कम होती है, गैस कम होती है, हमारे रेट्स नीचे आ जाते हैं। जब ये रेट ऊपर हुकूमत लेके जाती है हमारे रेट बढ़ जाते हैं, क्योंकि कराची से इंपोर्ट होता है माल, ये सारा बाहरले मुल्कों से कराची आता है, कराची से फैसलाबाद आता है। ये तमाम अखराजात जो होते हैं पेट्रोल के, ये तमाम उसी पेट्रोल मसनूआत में इजाफे से ताजिर बिरादरी नाला है। शराज भट्ट आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में बात करेंगे डेंगू मच्छर के हवाले से। डेंगू मच्छर का एक और वार, टोबा की रिहायशी मरीजा अलाइड अस्पताल में जेर इलाज। रवां साल डेंगू से एक मरीज जाँ बहक भी हो चुका। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन, बताएगा मरीजा की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, DHQ अस्पताल टोबा टैक्स सिंह की जानिब से डेंगू मरीज़ा को जो है वो अलाइड अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, और इस तरह फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में डेंगू से मुतासरा मरीजों की जो रवां साल तादाद है वो 3 हो चुकी है। तो हम अगर फैसलाबाद के हाल से बात की जाए तो फैसलाबाद में डेंगू से मुतासरा अफराद जो कि जिनका तल्लक ज़िला फैसलाबाद से था, तो उनकी भी तादाद 3 हो चुकी है। अगर जुबैदा बीबी जो कि 60 साल और पीर महल की रिहायशी है, अगर इसका जिक्र भी फैसलाबाद में किया जाए तो इस तरह मुतासरा मरीजों की जो तादाद है वो 4 हो चुकी है। हमारे साथ प्रोफेसर माहिर मेडिसन आमिर हुसैन साहब मौजूद हैं, जो कि डेंगू मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। उनसे जानते हैं। जी सर, जुबैदा बीबी की हालत कैसी है? इस वक्त जुबैदा बेबी स्टेबल है। यूजली हम लोग ना 10 दिन तक डेंगू को कंसिडर करते हैं। आज उसका जो है ना बुखार का 13वां दिन है, तो इसलिए हम बाकी दूसरी डायग्नोसिस को भी एंटरटेन कर रहे हैं। प्रोबेबली इसको डुअल इन्फेक्शन है, क्योंकि एक रिपोर्ट जो टोबा वालों की है उसमें उन्होंने मलेरियल पैरासाइट की पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। तो चूँकि ये दोनों बीमारियां मच्छर से फैलती हैं, तो हो सकता है कि इसके बुखार जो अब हो रहा है, क्योंकि इसका जो है प्लेटलेट वगैरह और वाइट सेल काउंट वो सारे बेहतर हो गए हैं, और कोई डेंगू से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इस वक्त नहीं हैं। लेकिन अभी मरीज़ को बुखार है, तो इसलिए हम बाकी दूसरी बीमारियां एंटरटेन कर रहे हैं, जिसमें मलेरिया शामिल है या कोई वायरल इन्फेक्शंस शामिल हैं, क्योंकि 10 दिन के बाद यूजली हम
ڈینگی سے نکال دیتے ہیں پیشنٹ کو. اس کا ایک ٹیسٹ پازیٹیو آیا جو ٹوبا والوں نے ہمارے پاس بھیجا تھا اور یہ انہی کے ڈیش بورڈ کے اوپر کنفرمڈ کیس فلیش ہوا ہے. تو چونکہ یہ امپروو نہیں کر رہا تھا تو پھر انہوں نے ہمارے پاس ریفر کر دیا. ہم اس کی الٹرنیٹیو ڈائگنوسس باقی چیزیں بھی ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وائرل انفیکشن ہے، ساتھ میں ملیریا ہے یا مننگو انکیفلائٹس ہے یا کوئی اور پیچیدگی ہے، اس کو رول آؤٹ کر رہے ہیں. ڈینگی اس کا البتہ بہتر ہے. کب تک جو ہے ڈینگی بہتر ہے؟ عزادار حسین، آپ مریضہ کی حالت کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. خبر شامل کریں گے کرونا کے حوالے سے. کرونا کے وار فیصل آباد میں مزید 13 مریض سامنے آ گئے. ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی 2 افراد کا ٹیسٹ مثبت. جھنگ اور چنیوٹ میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے. آپ کو کرونا کے حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. فیصل آباد میں مزید 13 مریض سامنے آ گئے. ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی 2 افراد کا ٹیسٹ مثبت. جھنگ اور چنیوٹ میں کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. آپ کو بتائیں کہ ضلع جھنگ میں ایسٹرازینیکا ویکسین کی 90,000 ڈوز کی فوری ضرورت. جھنگ میں 90,000 افراد کو سنگل ڈوز لگائی گئی جبکہ دوسری ڈوز تاحال نہ لگ سکی. ایسٹرازینیکا کی دونوں ڈوز 30 دنوں کے وقفے سے لگنا ضروری ہوتا ہے. اسی پر مزید تفصیلات آپ کو اب دے رہے ہیں. بتا رہے ہیں کہ ضلع جھنگ میں ایسٹرازینیکا کی 90,000 ڈوز کی فوری ضرورت ہے. آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں. ضلع جھنگ میں ایسٹرازینیکا ویکسین کی 90,000 ڈوز کی فوری ضرورت پڑ گئی ہے. جھنگ میں 90,000 افراد کو سنگل ڈوز لگائی گئی جبکہ دوسری ڈوز تاحال نہ لگ سکی. ایسٹرازینیکا کی دونوں ڈوز 30 دنوں کے وقفے سے لگنا ضروری ہوتا ہے. دوسری جانب فیصل آباد کے ٹھیکیدار کی ادائیگیاں روکنے کا معاملہ. ڈی سی سی ممبران تیسرے روز پھر ہائی کورٹ میں پیش. ڈپٹی کمشنر سی پی او سمیت 22 محکموں کے سربراہان پیش ہوئے. ضلع تیسرے دن بھی خالی، دفتری کام رک گئے. اسی پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیصل آباد کے ٹھیکیدار کی ادائیگیاں روکنے کا یہ معاملہ. ڈی سی سی ممبران تیسرے روز پھر ہائی کورٹ میں پیش. ڈپٹی کمشنر سی پی او سمیت 22 محکموں کے سربراہان پیش ہوئے جبکہ ضلع تیسرے دن بھی خالی، دفتری کام رک گئے. ہائی کورٹ میں ٹھیکیدار کی ادائیگیاں روکنے کا کیس. فیصل آباد ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے ممبران آج پھر عدالت پیش. ڈپٹی کمشنر سی پی او سمیت 22 محکموں کے افسران پیش ہوئے. فیصل آباد کے افسران کی عدالت میں تیسری پیشی. لگاتار تیسرے روز افسران پیش ہوئے ہیں. اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں رمضان مرزا. جی رمضان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، آج پھر ضلع فیصل آباد جو ہے وہ خالی دکھائی دے رہا ہے. ایک بار فیصل آباد ضلع انتظامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ایسے محکمے جو کہ ڈیولپمنٹ کے ذمہ دار ہیں ان کے سربراہان آج بھی لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، جس کے باعث لاہور میں فیصل آباد میں تمام تر دفتری کام جو ہے وہ رکا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ڈپٹی کمشنر ہوں، سی پی او فیصل آباد ہوں یا اس کے علاوہ ڈی جی ایف ڈی اے، اس کے علاوہ جو کنسٹرکشن سے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں روڈ ڈپارٹمنٹ ہے، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے افسران بھی موجود ہیں. محکمہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بھی افسران جو ہیں وہ لاہور ہی میں موجود ہیں. تاہم 4 فیمیل آفیسر جن میں ڈی جی پی ایچ اے اور ایڈمن آفیسر، ڈائریکٹر ایڈمن پی ایچ اے، ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر اور ایک ایکسین ہیں، ان کو جو ہے وہ کورٹ کی جانب سے رعایت دے دی گئی تھی خواتین ہونے کے باعث. باقی بہرحال تمام افسران جو ہیں وہ پیشی پر ہیں اور اگر آج بھی عدالت کا فیصلہ نہیں ہوتا اور پیشی دوبارہ ہوگی تو جس کے نتیجے میں فیصل آباد کے تمام تر افسران کو پھر فیصل آباد لاہور ہائی کورٹ کا جو ہے وہ رخ کرنا پڑے گا. جی بہت شکریہ رمضان مرزا، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آج ہی پنجاب کمپلینٹ سیل پر دی جانے والی درخواستوں کے باوجود شہری داد رسی کے لیے ہفتوں خار ہونے لگے. فیصل آباد ریجن پولیس کو آئی جی کمپلینٹ سیل 1787 سے موصول ہونے والی درخواستوں پر بھی کارروائی میں کئی ہفتے لگنے لگے. اسی پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئی جی پنجاب نے درخواستوں پر فوری کارروائی نہ کرنے پر سخت نوٹس لے لیا. جھنگ میں ایڈیشنل سیشن ججز کی کمی، سنگین نوعیت کے مقدمات بھی لٹک گئے. سنگین مقدمات کی تعداد 9000 سے تجاوز کر گئی. اسی پر بات کریں گے اویس خان سے.
जी बिल्कुल, जंग में एडिशनल सेशन जजेस की कमी के बायस संगीन नौयत के मुकदमात इल्तवा का शिकार होने लगे हैं। सिविल डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालतों के अंदर संगीन नौयत के मुकदमात जिनकी सज़ा जो है वो 7 साल कैद तक है, उनकी तादाद जो है 9000 से भी तजावुज़ कर गई है। जबकि ऐसे केसेस जिनमें जो है वो सज़ाए मौत ये इससे कम 7 साल से कैद से ज़ायद मुकदमात हैं, उनकी तादाद भी जो है तकरीबन 650 के करीब पहुँच चुकी है। इन केसेस में कत्ल, डकैती और हदूद के केसेस शामिल हैं। हम एडिशनल सेशन जजेस की कमी के बायस जो है अदालतों के ऊपर केसेस का इजाफी दबाव के बायस जो है ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में मुतवातिर इजाफा हो रहा है। अदालती रिपोर्ट के मुताबिक जो है ज़िला भर के अंदर 11 एडिशनल सेशन जजेस की सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें 10 सीटें जो हैं वो हेडक्वार्टर जंग से हैं, जहाँ पे 10 एडिशनल सेशन जजेस की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। जबकि जो है वो इसके अलावा जो है शोरकोट में भी एक एडिशनल सेशन जज की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस सूरत हाल के बायस जो है जजेस की कमी के बायस अदालतों के में जो है वो ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में मुतवातिर इजाफा हो रहा है। जबकि मुतवातिर इजाफा हो रहा है। वैस खान आप आगाह कर रहे थे कि फैसलाबाद होगा हरा भरा और दीदा ज़ेब, ग्रीन बेल्ट्स आबाद होंगी, पार्क्स भी खिल उठेंगे और फूल खिलेंगे पार्क्स में, दाखिली रास्तों का भी जमालाती हुस्न बढ़ेगा। मगर ये दावे बातों तक ही महदूद हो गए। पीएचए ने पहली बार शहर का मास्टर प्लान बनाने की ठानी, मगर फंड्स की किल्लत मंसूबा ले डूबी। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। रमजान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बरस पीएचए की जानिब से फैसलाबाद के मास्टर प्लान की बात की गई और दावा किया गया कि फैसलाबाद की तारीख में पीएचए अपना पहला मास्टर प्लान जो है वो तश्कील देने जा रहा है, जिसके तहत ना सिर्फ चौको चौराहों की में खूबसूरती होगी, पार्क सजेंगे, फूल खिलेंगे, ग्रीन बेल्ट्स हरी भरी होंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौजूदा बजट में एक आना भी जो है वो इस मकसद के लिए नज़र नहीं आ रहा। मियाँ वाकी फॉरेस्ट के लिए 50 लाख रुपए रखे गए हैं, बल्कि और इसके साथ साथ जो एक ऑन गोइंग स्कीम है उसके लिए 50 लाख रखे गए हैं। इसके अलावा पीएचए के लिए जो है वो फैसलाबाद के लिए कोई रकम नज़र नहीं आ रही, जिसका मतलब ये है कि एक साल फिर पीएचए के पार्क और जो ग्रीन बेल्ट्स हैं इसी तरह वैरान रहेंगी, सब्ज़ा नज़र नहीं आएगा, फूल नहीं खिलेंगे और शहरियों को सस्ती तफरीह का इंतज़ार जो है अभी मज़ीद करना पड़ेगा। जी, शहरियों को सस्ती तफरीह का इंतजार अभी मजीद करना पड़ेगा। रमजान मिर्जा आप आगाह कर रहे थे। तजावुज़ात के खात्मे के लिए अहम कदम, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में हफ्ता तजावुज़ात मनाया जाएगा। कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम भी कार्रवाइयाँ की जा सकेंगी। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। कि जब पंजाब हुकूमत की जानब से अहम फैसला किया गया, हफ्ता तजावुज़ात मनाया जा रहा है पूरे पंजाब में, फैसलाबाद समेत, तो इस सिलसिले में अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम मुकामी हुकूमतों के सरबराहान को ये पाबंद किया गया है कि ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक तमाम दिन कोई ना कोई इस सिलसिले में एक्टिविटीज़ की जाएँ, कार्रवाई की जाए और जो भी तजावुज़ात पुख्ता या नापुख्ता मौजूद है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। और इस सिलसिले में यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत करके ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएँ कि आइंदा आने वाले दिनों में तजावुज़ात ना हो सके, तजावुज़ात ख़त्म की जा सके और उसकी वजह से जो रोड ब्लॉकेज समेत दीगर मसाइल का सामना होता है वो पब्लिक को कम अज़ कम करना पड़े और उसकी वजह से जो उनके कारोबार है वो भी बेहतर होंगे। तो इस सिलसिले में दुकानदारों को, ताजरों को इत्मीनान में लेकर उनकी जो तजावुज़ात है पुख्ता वो भी ख़त्म की जाएंगे और इस सिलसिले में ऐसे इक़दाम भी किए जाएंगे कि आने वाले दिनों में ऐसी तजावुज़ात पैदा ना हो सके। तो ये फैसलाबाद में जो MCF है या इसके अलावा जो मुकामी हुकूमतें उनके सरबराहान को पाबंद किया गया है कि पूरा सरबराहान को पाबंद किया गया है। अब्दुर्रहमान, आप हफ्ता तजावुज़ात के हवाले से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि DHQ हस्पताल झंग में अमले की कमी, ज़राए के मुताबिक सरकारी अमला अफसरान के घरों पर काम करने लगा। वार्ड सर्वेंट और स्ट्रेचर रनर्स भी ड्यूटी से गायब। स्ट्रेचर से लेकर मरीज की वार्ड तक मुंतकली का काम मरीजों के लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया गया। आपको इस हवाले से आगाह कर रहे हैं कि DHQ हस्पताल झंग में अमले की कमी, ज़राए के मुताबिक सरकारी अमला अफसरों के घरों पर काम करने लगा। माली साल 2020-21 नंबर ले गया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट्स का साल रहा। इसी पर तफसीलात जान लेंगे बिलाल डोगर से। बिल्कुल एक अच्छी खबर है, माली साल 2020-2021 इख्तिताम हो गया। बरामदात ने पाकिस्तानी तारीख का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बरामदात 2020-21 के अंदर 25.50 बिलियन US को छू गई हैं, जो कि मशीर कॉमर्स रज़ाक दाऊद का एक अहद था कि एक दावा उन्होंने किया था कि हम इस अचीवमेंट को अचीव करेंगे, 25 बिलियन US को क्रॉस करेंगे। तो जून ने तमाम महीनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। 12 महीने US मिलियन डॉलर का जो बरामदात है वो पाकिस्तान ने गुड्स
बरामदात के अंदर की हैं। इसके अंदर सर्विसेज नहीं बल्कि सिर्फ गुड्स के अंदर की हैं, जो कि अगर मिलाएं तो मुकम्मल तौर पे अब जो बरामदात का एक तनासुब सामने आता है वो 25.50 बिलियन US डॉलर बनता है, जिसको पाकिस्तानी बरामदात के लिए खुश आइंद स्टेप कहते हैं, क्योंकि ये हदफ मुकर्रर किया था पाकिस्तानी वफाकी गवर्नमेंट और मशीर कॉमर्स रज़ाक दाऊद की जानिब से। और इस हवाले से सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इसे खुश आइंद करार देते हुए कहा है ये अच्छा एक माइलस्टोन है जो कि हमने अचीव भी किया है, और आने वाले सालों में इसे मजीद बढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं हमने अहद किया और अहद को पूरा आने वाले किया है। सालों में मजीद इसे बढ़ाने का अहद किया है। बिलाल डोगर आप आगाह कर रहे थे। एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़ेर इल्तवा इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स रिफंड्स की प्रोसेसिंग मुकम्मल करने की हिदायत। टैक्स दहिंदगान को अदायगियों के लिए रिफंड्स की फहरिस्तें तलब कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे उमर अजमत से। जी, टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बरामद कुनंदगान के जो ज़ेर इल्तवा रिफंड्स है, खा वो इनकम टैक्स की मद में है या सेल्स टैक्स की मद में है, तो उनकी तमाम तफसीलात जो हैं वो मातहत दफातर से तलब कर दी गई हैं। और इस हवाले से रीजनल टैक्स दफ्तर फैसलाबाद समेत दीगर दफातर को हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे रिफंड्स जो कि ज़ेर इल्तवा हैं या पेंडिंग हैं उन पर फौरी तौर पर प्रोसेसिंग की जाए और उनकी प्रोसेसिंग जो है वो मुकम्मल की जाए। और ऐसे रिफंड्स जो कि जेन्युइन हैं उनकी मंजूरी के लिए वो तमाम केसेस इब्तदाई प्रोसेसिंग के बाद बोर्ड को भिजवाए जाएँ, जिस पर बोर्ड उनकी हतमी मंजूरी देगा। और जो टैक्स गुजारों की रकूम है रिफंड्स की मद में क्लेम की गई वो तमाम बज़रिया स्टेट बैंक उनके बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जा सकेंगी। दूसरी जानिब टैक्स गुजारों के मुताबिक उनके अरबों रुपए के रिफंड जो हैं वो FBR के पास लटके पड़े हुए हैं, और FBR की जानिब से गुज़िश्ता साल तो रिफंड्स पर तेज़ी से काम किया गया और रिफंड्स जारी किए गए, मगर एक बार फिर रिफंड्स की मंजूरी और उनकी अदायगियों का सिलसिला जो है वो फहरिस्तें तलब कर दी गई हैं। उमर अजमत आप आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर साल के पहले 6 माह में शहरियों के 4,40,000 से जायद के चालान, 15 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। कम उम्र ड्राइवर से लेकर ओवरलोडिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी से तेज रफ्तारी तक हर जुर्म पर जुर्माने किए गए। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर साल के पहले 6 माह में शहरियों के 4,40,000 से जायद के चालान किए गए, 15 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। कम उम्र ड्राइवर से लेकर ओवरलोडिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी से तेज रफ्तारी तक हर जुर्म पर जुर्माने किए गए। आपको बताएं कि ड्राइवर से लेकर ओवरलोडिंग, कम उम्र ड्राइवर से लेकर और साथ ही ओवरलोडिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी से तेज रफ्तारी तक हर जुर्म पर जुर्माने किए गए। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर साल के पहले 6 माह में शहरियों के 4,40,000 से जायद के चालान किए गए। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब। जफर डोगर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियाँ इतनी क्यों बढ़ गई हैं? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ एक मामूल सा बन के रह गई हैं। हर महीने करोड़ों रुपए के चालान होते हैं और इस पहले 6 माह का जायजा लिया जाएगा अगर रवान साल का, तो इसमें 4,40,000 से जायद चालान किए गए फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। और शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर 15 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद का जुर्माना किया गया। और इनमें ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी को अगर देखा जाए तो 18,000 से जायद चालान किए गए, जिन पर 73 लाख रुपए जुर्माना की रकम आयद की गई। इसी तरह तेज रफ्तारी पर भी जुर्माना हुआ, 22,000 से जायद शहरियों को जुर्माने किए गए। और इस पर तेज रफ्तारी पर 1 करोड़ 8 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया। ओवरलोडिंग पर 22,000 से जायद चालान हुए और 1 करोड़ 60 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मुख्तलिफ कम उम्र के बच्चे भी आजकल सड़कों पर दिखाई देते हैं और ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ उनके हाथों बहुत होती हैं। और कम उम्र बच्चों के 15,000 से जायद चालान किए गए, जिन पर 70 लाख रुपए से जायद जुर्माने किए गए। इसी तरह बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने का भी ट्रेंड है और लोग करते हैं, और 13,000 से जायद चालान किए गए इस हवाले से, और 70 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया। ट्रैफिक पुलिस बहुत मुतहरक दिखाई देती है इस हवाले से। लाइन और लेन की खिलाफ वर्जी को देखा जाए तो 20,000 से जायद चालान हुए और इन पर 80 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया। और वन वे की खिलाफ वर्जी अक्सर देखने में आती है, लोग धड़ल्ले से करते हैं, और 23,000 से जायद चालान किए गए हैं वन वे की खिलाफ वर्जी पर। और वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना हुआ।
हेलमेट ना पहनने का भी एक बहुत अहम मामला है, जिस पर 54,000 से जायद चालान और 1,62 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया। दीगर मुख्तलिफ मद्दात में भी जुर्माने हुए। इस हवाले से CTO शहजादा उमर अब्बास बाबर का कहना है कि शहरियों की जिंदगियों को उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और हादसात की रोकथाम जो है वो उनकी अव्वलीन तरजीह है, और इसलिए जहाँ जहाँ भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी देखने में आती है, ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुतहर्रिक होती है और जुर्माना करती है। जी जफर डोगर साहब, ब्यूरो चीफ फैसलाबाद, आप हमें इस हवाले से स्टैटिस्टिक्स दे रहे थे जुर्मानों के। आप बता रहे थे हमें कि जुर्माने किए गए हैं ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर साल के पहले 6 माह में शहरियों के 4,40,000 से जायद के चालान किए गए, 15 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर साल के पहले 6 माह में शहरियों के 4,40,000 से जायद के चालान, 15 करोड़ 70 लाख रुपए से जायद के जुर्माने किए गए। कम उम्र ड्राइवरों से लेकर ओवरलोडिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी से तेज रफ्तारी तक हर जुर्म पर जुर्माने किए गए हैं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ट्रैफिक पुलिस भी मुतहर्रिक। साल के पहले 6 माह में 4,40,000 से जायद चालान किए गए। रुख करेंगे जंग का, जहां ई ट्रांसफर का 1 जुलाई से ऐलान करदा नया फेज महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से शुरू ना किया जा सका। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की जानिब से पॉलिसी मुरतब ना करने पर ई ट्रांसफर का नया फेज 10 जुलाई से शुरू होने का इम्कान है। नए ई ट्रांसफर के फेज में तमाम कैटेगरीज के असातिज़ा को तबादलों की इजाज़त दी जाएगी। फिल वक्त इतना है।